नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 3 इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ब्रीफली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड थ्रू द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बाय द अकाली दल। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब, द Punjabi speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of people from Punjab in the Indian army should be increased and more autonomy should be given to the state of Punjab. Second point is Akali Dal came to power in Punjab in 1977 and third point क्या बोल रहा है कि while taking charge they asked for a larger share of river water for Punjab, holy city status for Amritsar etc. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड क्या है यहाँ पर कि व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर दिस we should mix with people of different religions, we should accept the good practices and ideas of each other, we should able to look at and understand our economic and social problems rationally, we should not mix these questions with religion. थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि we should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. Fourth point, this is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्या है कि when does regionalism become strong। तो इसका आंसर देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स। द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट बिगिन टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर ड्यू टू देयर सुपीरियर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच। सेकेंड पॉइंट इज then they begin to look down put the people of underdeveloped regions. फिर थर्ड पॉइंट, they are not willing to share the benefits of development with the backward states. ओके तो ये है इसका आंसर जो अभी अभी मैंने आपको बताया। फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी सेकंड क्या है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। इसमें फर्स्ट है कम्युनलिज्म। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने इसको एक्सप्लेन किया है जो आपके सामने है ना। अब नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर रीजनलिज्म। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर आपके सामने आपके स्क्रीन पर, ये देखो ये इसका कंप्लीट आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो थर्ड क्या है, गिव रीजंस। इसमें फर्स्ट वन है इट बिकेम नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका आंसर देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd June 1984 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार started. The operation ended on 6th June. Second point, in this military operation the Indian army functioned with great restraint. फिर third point, the operation ended with the death of Bhindranwale and other terrorists. फिर fourth point, in 1986 an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट का आंसर बता दिया। अब सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड क्या बोल रहा है कि वी शुड फाइट कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस, इफ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। सेकेंड पॉइंट इज हाउ कैन national unity be achieved without social unity, hence it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. Third point is for this we should mix with people of different religions. फिर fourth point यहाँ पर है कि we should accept the good practices and ideas of each other. Fifth point is we should be able to look at and understand our economic and social problems rationally. फिर sixth, we should not mix these questions
with religion, we should search for the economic, political and historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. And last point is, this is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ वन, राइट द फुल फॉर्म्स। देखो स्टूडेंट्स, आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, MNF, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मिजो नेशनल फ्रंट। सेकेंड NSC, तो इसका क्या होगा, नागा नेशनल काउंसिल। फिर थर्ड PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया।